املاکی زمینوں پر قبضے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ہندو سمادھی جلانے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت میں چیف جسٹس سے ریمارکس دیے کہ پولیس نے ہجوم کو اندر جانے کی اجازت کیسے دی۔ واقعے کا ذمہ دار مولوی شریف کچھ دن میں ضمانت لے کر باہر آ جائے گا۔ سمادھی کی بحالی کی رقم مولوی شریف سے وصول کریں۔ فعال اور غیر فعال مندروں کی تفصیلی فراہم کی جائے۔ چیئرمین مطلوبہ وقف املاک کی اب تک کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت۔ نواز شریف کی جائیداد قرقی کی رپورٹ پیش۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا نواز شریف کی جائیدادوں کو قرق کرنے کا مرحلہ جاری ہے، قرقی کے لیے مہلت دی جائے۔ کہتے ہیں کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے جموں اور کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کی ضمانت دی تھی۔ 73 سال سے کشمیری وحشیانہ بھارتی قبضے کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی جد و جہد کی ہر ممکن حمایت جاری رکھے۔ حق خود ارادیت انسان کا بنیادی پیدائشی اور عالمی قانونی حق ہے۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ کشمیری حریت پسندوں کو سلام عقیدت جنہیں کوئی جبر و ظلم جائز بنیادی جمہوری حق کے حصول کی جد و جہد سے ہٹا نہ سکا۔ آج کا دن اقوام متحدہ کو یاد دلاتا ہے کہ حق خود ارادیت دینے کی قرارداد پر تاحال عمل نہیں ہوا۔ دنیا مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم پر خاموشی توڑ دے۔ فیاض چوہان کہتے ہیں کہ 5 جنوری اقوام متحدہ کو کشمیریوں سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل کی یاد دہانی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل کشمیریوں سے 72 سال پہلے حق خود ارادیت دلانے کا کیا گیا وعدہ پورا کرے۔ ملک میں کورونا سے مزید 59 افراد جاں بحق۔ 24 گھنٹوں میں 1947 نئے مریضوں کا اضافہ۔ فعال کیسز 35,707 ہو گئے۔ کورونا سے اموات 10,409 اور کیسز 4,44,360 ہو گئے۔ پشاور میں محکمہ صحت کے سابق افسر ڈاکٹر صفدر علی شاہ کورونا سے انتقال کر گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری۔ لاہور، فیصل آباد، ناروال، چیچا وطنی، گوجرا، پنڈی بھٹیا میں بادل برس پڑے۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مری میں برف باری۔ موسم انتہائی سرد۔ کراچی میں سردی کی نئی لہر۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سانحہ حمج کے خلاف مغربی بائی پاس پر ہزارہ برادری کا دھرنا تیسرے روز میں داخل۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کے مظاہرین سے مذاکرات ناکام۔ کہا کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان نہیں آتے دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا۔ کورونا کی روک تھام پر بریفنگ دی جائے گی۔ 1997 میں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کابینہ کے فیصلے پر نظر ثانی سمیت دیگر معاملات ایجنڈے میں شامل۔ انتشار کی سیاست کو عوام نے یکسر رد کر دیا۔ ملک کی ترقی کو روکنے کی ہر کوشش ناکام رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کرنے والے عناصر بے نقاب ہو چکے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت مدت پوری کرے گی۔ سازشی عناصر پہلے کی طرح روتے رہیں گے۔ معاون اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم کے منفی سیاست کو عوام نے آر پار کر دیا۔ تاریخ پہ تاریخ دینے والوں کا اپنا مستقبل تاریخ ہے۔ اپوزیشن استعفے دینے کے معاملے پر ڈر چکی ہے اور جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا آج 92واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کا دفاع ناقابل تذکیر بنانے کے لیے ملک میں ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کے نمایاں کارناموں میں شامل ہے۔
KP की हुकूमत ने 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के शहरियों को सरकारी अस्पतालों में OPD में दाखिला फीस से मुस्तस्ना करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में 60 साल या जायद उम्र वाले अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पंजाब वाईफाई मंसूबे की बंदिश से मुतालिक प्रोपेगेंडा झूठा और बेबुनियाद है। मोमिन इत्तला पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि पंजाब के अस्पतालों, तालीमी इदारों, पाक सरकारी दफातर में फ्री वाईफाई की सहूलत बदस्तूर जारी है। बुजदार हुकूमत डिजिटल पंजाब विजन के तहत फ्री वाईफाई मंसूबे को पंजाब भर तक फैलाने के लिए पुरज़्म है। सोशल मीडिया वेबसाइट पर गुस्ताखाना फिल्म की रिलीज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA से गुस्ताखाना मवाद रोकने के इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अच्छा होगा कि तमाम सोशल मीडिया साइट्स के पाकिस्तान में दफातर खुल जाएं। मुतनाज़ा फिल्म पर पाबंदी तब लगाएंगे जब पाकिस्तान में रिलीज होगी। फिल्म इंटरनेट पर दस्तयाब है तो उसका वजारत इत्तलात से ताल्लुक नहीं बनता। PTA ने ऐसे मवाद पर नजर रखनी है। सिंध हाई कोर्ट में म्यूनसिपल कमिश्नर मलीर के फंड्स में खुर्द बुर्द केस की समाअत। नैब तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके रेफरेंस मंजूरी के लिए हेडक्वार्टर भेज दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 20 जनवरी तक रेफरेंस दायर न किया गया तो मुलज़मान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली जाएगी। कोरंगी में 56 एकड़ जमीन गैर कानूनी अलॉट करने का मामला, रेफरेंस में नामजद 2 मुलज़मान ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। आशिकवान तकरीब से खिताब कर रही है। प्रोजेक्ट के अंदर 30 मिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट आई है। 57 मिलियन US$ का इस पे टोटल हमारा जो है टारगेट है। ये प्रोजेक्ट जो है 57 मिलियन US$ का और 30 मिलियन US$ इसमें जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में आना और ख़ुसूसन पंजाब में आना, पंजाब हुकूमत की इन्वेस्टमेंट दोस्त पॉलिसीज़ का मज़हर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पे एतमाद का इजहार है और गुड गवर्नेंस और बेटर परफॉर्मेंस जो सूबा पंजाब लीड कर रहा है बाकी सूबों की निस्बत, ये आज का मंसूबा, ये आज का MOU, ये आज का पाकिस्तान के अवाम को तोहफा जो है इमरान खान की क़यादत पे दुनिया की कंपनीज का इजहार है। और दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान बदल चुका है। अब यहाँ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले अपने हकीकी ठिकाने पे पहुँचे हुए हैं और जो इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा के भटक रहे हैं वो भी जल्द अपनी असल जगह पे, असल ठिकाने पे चले जाएंगे। और अब यहाँ सिर्फ अवामी मफाद के मंसूबे बनेंगे, अवाम को रिलीफ देने की पॉलिसीज़ बनेंगी और अब ज़िले सुबहानी का नज़रिया और उनका ख़ानदान जो है वो अपने मफादात के साथ जुड़ा हमेशा के लिए सियासत के उफ़क़ से गायब होगा। और जो आज के मंसूबे की इफादियत उसके साथ जुड़ा जो रोड मैप है कि किस तरह इस मंसूबे से पंजाब के अंदर और वफाक के अंदर रहने वाले हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे और बैनुल अक़वामी सतह पे इस मंसूबे की अफादियत और अहमियत क्या है, मिनिस्टर एनर्जी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा का और तमाम मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस इवेंट को कैप्चर किया और पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाने में हमारा साथ दिया। और दूसरे नंबर पर मैं पंजाब की आवाम को ख़ास तौर पर और पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब की क़यादत में उस्मान बुज़दार साहब के
विजन के मुताबिक आज जो हमने संगे मील अबूर किया है, ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन संगे मील है, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे लोएस्ट टैरिफ 3.7 सेंट पे ये हमने मुआहदा किया है और ये मुआहदा 100 मेगावाट का है। इसके मुकाबले में जैसे मैडम ने फरमाया कि 14.1 सेंट पर पिछली हुकूमत करके गई थी, क्योंकि उनके फ्रंटमैन और वो उनके खुद जो आल है वो मुस्तफीद होती थी। हमने ये फ्रंटमैन अवाम को रखा और अवाम को मुस्तफीद करवाया। ये तकरीबन 5.25 रुपए यूनिट पर ये बिजली सिस्टम में शामिल होगी, जबकि पिछली हुकूमत 25 रुपए पर ये बिजली सिस्टम में शामिल करके गई है। लोग कहते हैं कि ये हुकूमत मुआवन खुसूसी इत्तलाल फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में जलाई जाने वाली हिंदू समाधि की फौरी बहाली और मतरूका वक्फ इमलाक की जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक की अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अब तक की आपको ये ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं। सरकारी तर्ज पर काम ना करें, चीफ जस्टिस का मतरूका वक्फ इमलाक के चेयरमैन से मुकालमा। आज ये समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट में कर्क में जलाई जाने वाली हिंदू समाधि की फौरी बहाली और मतरूका वक्फ इमलाक की जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक की अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट को भी तलब किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज ये आपको कर्क से दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने आज समाअत में कहा कि आपके इदारे के मुलाजमीन मंदिर की जमीनों पर कारोबार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करें। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक फौरी तौर पर कर्क मंदिर का दौरा करें और दोबारा से तामीर शुरू करें। आपकी एलाएं, उनकी एक्सपर्टीज फॉरेन अफेयर्स की, फिर खुरम दस्तगीर साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कश्मीर कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बैरिस्टर सैफ एमक्यूएम से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, यहां पे मेरी बहन नौरीन इब्राहिम साहिबा बैठी हैं, ये स्टेक होल्डर हैं। इनके घर में इल्हाक पाकिस्तान का फैसला सरदार इब्राहिम साहब के घर में हुआ था। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं और मैंने हर जगह प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को और आपको रीच आउट किया। स्टैंडिंग जब भी हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, पहला इन्विटेशन आपको, एंड वी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी कि आप हमें बताएं, हमें गाइड करें और हम मिलकर आगे जाएं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जहां तक बात है टांगे कांपने की, अभिनंदन किसी को नहीं भूला। प्राइम मिनिस्टर और इस हुकूमत में और रियासत पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स में कश्मीरियों की, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरियों की माओ बहनों बुजुर्गों, उनके जवानों बच्चियों को, उनको इज्जतों और उनकी सोच को सलाम है। साथ ही साथ आजाद कश्मीर के 10 अजला के तमाम बुजुर्ग जवान बहनों और बच्चों और तमाम स्टेक होल्डर्स को सलाम है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला के तमाम स्टेक होल्डर्स को सलाम है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, मैं कबाइल हूं, पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी, औरंगजेब एजेंसी, खुरम एजेंसी, मोहम्मद, बाजवड़, ये तमाम और एफआर्स और तमाम सेटल्ड एरिया के पश्तून, चाहे वो यूसुफजई हैं, चाहे वो खटक हैं, चाहे वो जिस सोच के हैं, चाहे वो अफरीदी हैं, शनवारी हैं, दावड़ हैं, मसूद हैं, मोहम्मद हैं, बाजोड़ी हैं, वो आपके साथ ऐसे सीसा पिलाई तब भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा ईमान है। और बात यहां नहीं रुकती प्राइम मिनिस्टर साहब, पंजाब के, चाहे वो आराई हैं, चाहे वो डोगरे हैं, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो पोठार बेल्ट के हैं, चाहे वो साउथ ऑफ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, पंजाब का कोना कोना कश्मीर के साथ खड़ा है। और इसी तरह सिंध, चाहे वो इंटीरियर सिंध है, चाहे वो सेंट्रल सिंध है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वहां का बलोच है, चाहे वहां का पश्तून है, बरोई है, वो आपके साथ ऐसे खड़ा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की तमाम सोच, पाकिस्तान के एकेडेमिया, पाकिस्तान की यूथ,
پاکستان کا بچہ بچہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد، دھرتی ماں کے بعد ایک چیز ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ نو فادر وداؤٹ اے ڈاٹر، اسی طرح نو کشمیر کاز وداؤٹ anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. ہم یہاں بلیم گیم نہیں کرنے آئے. آپ آزاد کشمیر کے نہیں، میرے بھی آزاد کشمیر کے، میرے لیے بھی پرائم منسٹر ہیں. آپ کو ہمیشہ باپ کو اور بزرگوں کو عزت دی. ابھی بھی میں نے آپ کے گوڑوں کو ہاتھ لگایا. کیوں لگایا؟ You deserve it and you have earned it. لیکن آنریبل پرائم منسٹر صاحب،